اب جو آپ پورٹریٹ دیکھنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسے فنکار کی ہے کہ بدقسمتی سے ان کا نام اب کچھ کم لیا جاتا ہے. حالانکہ اگر آپ 60 کی دہائیوں تک جائیے تو پاکستان میں ایک پہچان تھی کلاسیکی موسیقی کی، اور وہ تھی ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم. جب میں ان کا پورٹریٹ بنانے نکلی تو مجھے سمجھ نہیں آیا میں کس سے کہوں کہ ان کا اسکرپٹ لکھے، کیونکہ وہ اتنی بڑی شخصیت تھی اور موسیقی کے بارے میں کچھ مجھے اتنا زیادہ معلوم نہیں تھا، خصوصی طور پہ کلاسیکی موسیقی کا. اور پھر میری قسمت کہ مجھے سلیم گیلانی صاحب ملے جو اس وقت ریڈیو پاکستان کے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے. ان کی اسکرپٹ، ان کی ریسرچ، ان کی موسیقی کے ساتھ ایک طرح سے رشتہ ان کا، اتنی خوبصورت وہ اسکرپٹ انہوں نے لکھی. اور پھر صرف اسکرپٹ نہیں، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس پوائنٹ پہ کن شخصیات کا میں انٹرویو کروں. اور میں حیران ہو گئی جب میں نے یہ پورا پروگرام اپنا دیکھا، کیونکہ میں ہر پروگرام اپلوڈ کرنے سے پہلے ضرور دیکھتی ہوں. جب میں نے پورا پروگرام دیکھا، یہ پروگرام ہے تقریباً 30 سال پہلے کا، تو میں خود محو ہو گئی اس میں، حالانکہ میں نے ہی بنایا تھا. ایسے ایسے لوگ سامنے آئے، خوبصورت لوگ، خوبصورت استاد، خوبصورت نام، جنہیں دیکھ کے میں حیران ہو گئی کہ میں ان کے پاس گئی تھی. میڈم نور جہاں، فریدہ خانم، اقبال بانو، ملکہ پکھراج، سلامت علی خان، شگن صاحب، فتح علی خان صاحب، حیات احمد خان صاحب، شوکت حسین صاحب، ایبسولوٹ ٹریجرز. تو یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے ہے جو کلاسیکل موسیقی سے بہت شغف رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، اور روشن آرا بیگم کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ ہے. اور آپ سننے لگیں تو آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی خاتون، بالکل چھوٹی سی، قد میں بھی چھوٹی اور ویسے بھی بالکل چھوٹی، لیکن the voice, the artistry, the mastery and the simplicity. روشن آرا بیگم کو میں نے گاتے سنا ہوا ہے، اور میں زیادہ تر ان کی ساڑیوں سے اور ان کی ساڑیوں کے رنگوں سے متاثر ہوا کرتے تھے. پیلا، نیلا، سبز، اودا، لال. آہا. Ladies and gentlemen, روشن آرا بیگم. میرا بڑا دل کرتا تھا کہ صبح جب میری آنکھ کھلے تو انہی کی آواز سے کھلے. میں نے سنا اس وقت ان کا گانا ایک ایسے مقام پہ تھا کہ سننے والا تعریف ہی نہیں کرے بلکہ حیران ہو جائے. یہ کہنا چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں ایسی خاتون نہیں سنی. میرا خیال ہے کہ ایسی خاتون پہلے بھی نہیں ہوگی، اور اب تو شاید ہی کیا ہو. روشن آرا بیگم کو اپنا انداز جو انگ تھا گانے کا، اور بہت خوبصورت، وہ الگ لگاتی تھی. وہ واقعی میں اپنے زمانے کی غالب تھی. وہ ایک ایسی فنکار تھی جس پہ ریڈیو پاکستان کو ہمیشہ فخر رہے گا. کہ راگ میں جب بھی سنتا ہوں اب بھی تو مجھے آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے کہ ایسے لوگ اب نہیں ملیں گے. وہ سنیدے بھی تھے، تیار بھی تھے، گویے بھی پورے تھے. وہ روشن آرا اور سلسلے سے گاتی تھی. جیسے کہ الف بیتے کی تختی پوری کی جاتی ہے تو وہ موسیقی کی تختی کو پورا کرتی تھی. ملکہ موسیقی انہیں کو کہا جا سکتا ہے جو اپنے فن میں سب سے الگ تھلگ ہے.
اور اسی طرح ہمیں ان سے جو ان رغبت یا محبت یا ان کا لحاظ پیار جو تھا ابھی بھی ہے اور رہے گا، کیونکہ ہم جن کا احترام کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں. بہت بڑے بڑے فنکاروں میں یہ تو وہ لوگ ہیں جو صدیوں نہیں پیدا ہوئے. لالا موسیٰ کیا ہے؟ گجرات اور جہلم کے درمیان نئے پرانے کچے پکے ایک منزلہ دو منزلہ مکانوں اور تنگ گلیوں بازاروں کا ایک قدیم قصبہ ہے. چاروں طرف دور دور تک پھیلے ہوئے ہرے بھرے کھیت، شاداب درختوں کے جھنڈ اور کھیتوں کی پگڈنڈیوں پر صبح و شام پھیلتے سمٹتے سایوں میں آتے جاتے کسان، گوالے اور ان کے ڈھور ڈنگر. فطرت کے انہی معصوم اور سمنائے ازل کا قرب عطا کرنے والی رانائیوں میں رچے بسے لوگوں کے درمیان بر صغیر پاک و ہند کی سب سے بڑی مغنیہ روشن آرا بیگم نے اپنی زندگی کے آخری 34 سال گزارے، اور یہیں سرسبز کھیتوں میں گھرے ہوئے درختوں کے ایک خاموش جھنڈ میں ان کی آخری آرام گاہ ہے، جہاں وہ اپنے شوہر چودھری احمد خان کے پہلو میں دفن ہے. وہ شخصیت جس کے تصور سے ایک اور محض ایک لفظ ذہن میں ابھرتا ہے: موسیقی. عبد الحلیم اور چندہ بیگم کانپور کے تھے، پٹنے میں آباد ہو گئے تھے. چندہ بیگم متوسط گھرانے کی ایک خوش ذوق نیک دل خاتون تھیں. ان کے شوہر عبد الحلیم کا فرنیچر کا کاروبار تھا. موسیقی سے انہیں کوئی شغف نہیں تھا. اسی خوش نصیب جوڑے نے یہ سعادت پائی کہ ان کے یہاں بر صغیر پاک و ہند کی موسیقی کا وہ چراغ روشن ہوا جسے روشن آرا بیگم بننا تھا. جی میرا اصل نام وحید النساء ہے. ایک ولی اللہ تھے دیوان شریف کے، وہ ہمارے یہاں آئے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کچھ سناؤ. تو میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی، اس کے بعد کچھ نعت وغیرہ سنائی.
तो बहुत खुश हुए, कहेंगे कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम वहीदुन्निसा। कि नहीं, वहीदुन्निसा नहीं, रोशन जहां नाम रखो, रोशन जहां, जहां में तू रोशन हो जाएगी। उन्होंने एक ऐसी दुआ दी मुझे, और वो अल्लाह मियां ने पूरा किया है, अल्लाह की मेहरबानी है। तब वो रोशन जहां से फिर मैं रोशन नगर हो गई। नगर ये जो कुछ सदका है, जो कुछ मैं कर रही हूँ, ये मेरी वादा का तुफैल है। जाहिर है कि जो जिन्होंने इतनी मेहनत की और मुझे इस काबिल बनाया। सही। और जहाँ जहाँ जो आपने चाहा, और क्योंकि मैं एक ही बेटी थी, बहुत ज्यादा लाडली थी, प्यारी थी उन्हें, तो वो जो कुछ मैं कहती थी वो सुनती थी। मैं जो हूँ तो मैं अपनी वालदा का बहुत अदब करती थी। वो इतना पीट भी लेती थी कि मुझे चूना और हल्दी लग जाती थी, यहाँ तक भी पीटती थी, मगर मैंने कभी उनके आगे सर नहीं उठाया, जितना भी मार ले। जो किस किस्म की शरारत हुआ करती थी? शरारत ये इस किस्म की थी कि अब उन्होंने मुझे बुलाया, मैं अब बुढ़ियों के साथ खेल रही हूँ, मैंने नहीं सुना। अच्छा। अब आई तो जब वो चीखने लगी ज्यादा, तो आई तो उन्होंने फिर मुझे पीटा। तो फिर जब वो मुझे मालूम था कि ये पीटेंगी तो बहुत ज्यादा पीटेंगी। तो हमारे मकान में वो जो आंगन था, वहाँ एक नीम का पेड़ था। अच्छा। मैं उनको चारों तरफ घुमाना शुरू करती थी। इतना घूमे कि वो थक के खुद ही बैठ जाती थी, फिर मैं भाग जाती थी सामने से। ये शरारत थी मेरी, ज्यादातर उनको मैं घुमाती थी उनके आगे पीछे कि इन्हें हमें, हाँ ये थके हमें मारे ना। रोशनारा बेगम कलकत्ते में पैदा हुई, जहां उनकी खाला अजमत बेगम रहती थी। रिपन स्ट्रीट के 32 नंबर मकान में अजमत बेगम मिसेस नूर मोहम्मद नूरी या सिर्फ मिसेस नूरी कहलाती थी। खाला को नौमौलूद भांजी पर इतना प्यार आया कि पैदा होते ही उसे गोद ले लिया। तो अब गोया खाला माँ बन गई और माँ खाला। यूं रोशनारा कलकत्ते की हो रही। कभी कभी माँ से मिलने पटने चली जाती थी। सही तारीख पैदाइश किसी को याद नहीं, अलबत्ता अजमत बेगम कहा करती थी 12 वफात के महीने की 25 तारीख थी, गालिबन 1915-16 ईस्वी का दौर था। तो इस तरह मुझे भी बचपने से मेरी आवाज बड़ी अच्छी थी, सुर में थी मैं। जो कोई गाता था उसको मैं नोट कर लेती थी, फौरन मुझे मैं हासिल कर लेती थी इस चीज को। ये मेरी आदत थी, शुरू से मेरी तबीयत में ये मौसीकी थी। बिल्कुल थी। मगर जब खान साहब वगैरह बैठे, उस्ताद बैठे, सिखाने वाले बैठे, तो फिर उन्होंने जब शुरू कराया तो वो मैंने शुरू करने में मुझे कुछ दिक्कत महसूस हुई, मगर इतनी नहीं, क्योंकि मेरी आवाज सही थी, सुर में थी, तो मैं जरा जल्दी उसको कैच कर लेती थी। 9 साल की उम्र में मैंने अपनी वालदा को कहा था कि अब आप मुझे कोई उस्ताद अच्छे से जो आपको समझ में आते हैं, जो कहीं यहाँ पर जो अच्छे हैं उन्हें बुलाएं, तो मुझे बिस्मिल्लाह शुरू कराएं। तो फिर वहाँ खान साहब लड्डा खां थे, उन्हें बुलाया था कि खान साहब की बच्ची को आप सिखाएं, से शौक है। उन्होंने शुरू कराया मुझे 9 साल की उम्र से। बंबई में माहिम के इलाके में मखदूम बाबा की दरगाह के करीब उनकी कोठी थी, मानकवाला समंदर के किनारे एक निहायत पुरफजा मकाम पर बनी हुई। बंबई से रेडियो प्रोग्राम करती थीं तो शायकीन अपने रेडियो सेटों पर हार डालकर उनका गाना सुनते थे। बंबई में जिस फ्लैट में वो रहती थीं उसके करीब फ्लैटों का किराया ज्यादा था, क्योंकि वहां उनके गाने की आवाज आती रहती थी। सन 1947 में भारत में आए दिन के हिंदू मुस्लिम फसादात की वजह से रोशनारा बेगम ने बंबई छोड़ दिया। उस शहर को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया, जिसका नाम उनके नाम का हिस्सा था, क्योंकि वो बंबई वाली रोशनारा बेगम के नाम से मशहूर थी। ये गाय की खूबी है कि वो वक्त को महसूस नहीं होने देता कि वक्त क्या हुआ है, लोगों को एहसास ही न होगी क्या टाइम हो गया। तो रोशनारा बेगम साहबा में ये खूबी थी कि वो वक्त का पता ही नहीं चलता था, और ख्वाहिश यही रहती थी कि गाती जाए और हम बैठे नहीं सुने। पेट नहीं भरता, तवे नहीं भरती थी सुनकर कि आदमी उकता जाए, बल्कि लोग एक से एक अच्छी बात वो कहती थी और लोग इश्तियाक बढ़ता था कि देखिए अब ये क्या कहने वाली हैं, अब ये किस किस्म की ताब जाने वाली हैं, अब किस किस्म की आमद आने वाली हैं।
और फिर जब वो दौड़ कला शुरू होती थी, तैयारी भी उनकी बहुत कमाल की थी। और तैयारी में भी वो राग में जो वो शुरू की होती थी उसकी सच्चाई का, राग रानी का मुकम्मल ख्याल रखती थी कि मेरे धुन में राग की शक्ल जो है वो कायम रहे। कई महफिलों में सुनने वालों पर उनके गाने का इतना असर होता कि वो बेसाख्ता उनके कदमों से लिपट जाते। बड़े बड़े उस्तादों पर उनके सच्चे सुरों से रिक़त तारी हो जाती। खास तौर पर आगरे वाले उस्ताद फैयाज खान ने तो एक बार भरी महफिल में खड़े होकर इस दर्द भरे अंदाज में उनको दुआएं दी कि हर आंख अश्कबार हो गई। उस्ताद हाफिज अली खान सरोद नवाज पटियाले वाले उस्ताद आशिक अली खान बतौर खास फरमाइश करके उनसे गाना सुना करते थे। उनके उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब उन्हें अपनी रूह कहा करते थे। हमारे उस्ताद अगर कहते थे कि ये सरगम आपने 4 महीने तक करनी है तो मैं उसी तरह करती थी। अगर एक चीज़ बता दी तो यानी अपने उस्ताद के हर वक्त उनके ख्याल में यही रहता था कि ये इनका गला अच्छा हो और उसमें सुर बैठ जाए। और अब तो बस ये चाहते हैं, तो इसमें तो बहुत आप जानते हैं कि किस कदर रियाज की ज़रूरत है, आवाज़ को बनाने की ज़रूरत होती है। कि उनको इस अंदाज से मेहनत कराई गई थी, उनको वो नक्शे बतला दिए गए थे कि वो उस नक्शे के ऊपर चलती थी। एक नक्शा आप बना दें, वो शागिर्द आपका उस नक्शे के ऊपर चलेगा। तो उनके पास वो एक नक्शा था कि वो उस नक्शे पे गाती बजाती थी और लोगों पे असर होता था। मैं समझती हूँ कि चारों चीज़ें होनी चाहिए, आवाज़ भी, खुदा की रहमत भी, उस्ताद भी, रियाजत भी, और उसके साथ सबसे बड़ी बात ईमानदारी अपने काम के साथ। मैं तो ये समझती हूँ अगर आप अपने फन के साथ ईमानदार हैं तो ये आपको कभी धोखा नहीं देगा। रोशनारा बेगम जैसी मतीन, बुर्दबार और संजीदा मिजाज खातून को देखकर यकीन नहीं आता कि वो कभी फिल्म स्टार भी थी। लेकिन ये वाकया है कि जब वो बम्बई में अपनी खाला के साथ लैमिंगटन रोड पर निस्टन लॉज में रहती थी तो उनके गाने का बड़ा शोहरा था। इसी शोहरत की बिना पर उन्हें कई बार फिल्मों में काम करने की पेशकश हुई। चुनाचे उन्होंने मुतअद्दिद फिल्मों में हीरोइन और साइड हीरोइन के रोल अदा किए। ये वो जमाना था जब हर एक्ट्रेस को अपना गाना खुद गाना पड़ता था।
प्ले बैक वगैरह तो था नहीं, तो वो हीरो हीरोइन जो रखते थे तो वो खुशगुलू रखते थे, जो खूब अच्छा गाते हो और वो आप गा सकें। और वहाँ तो बात बात में गाना था, सिपाही आ रहा तो गा रहा है, जो भी आ रहा है वो गा रहा है। उसके बाद फिर जब मैं खान साहब की शागिर्द हुई तो उन्होंने मना कर दिया कि फिल्म छोड़ो, ये हम पसंद नहीं करते फिल्म लाइन, इसे छोड़ करके हमारी अगर शागिर्द बनना है तो ये काम छोड़। उसके बाद उनके हुक्म से जो वो हुक्म करते थे हमें मानना पड़ता था। इस फैसले के बाद रोशन आरा बेगम ने जिंदगी भर फिल्मों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। रोशन आरा बेगम ने कलकत्ता छोड़ा ही खान साहब अब्दुल करीम खान की शागिर्दी की खातिर था। खान साहब के इल्म का बड़ा चर्चा था, वो संगीत रत्न कहलाते थे। उनके कई शागिर्द थे और शागिर्दों के शागिर्द भी बड़े बड़े नामी ग्रामी मौसीकार थे। एक खान साहब थे वहाँ, बहादुर खान, खान साहब के लड्डन खान साहब के दोस्त थे। तो एक दिन आए हमारे यहाँ, तो वो खान साहब अब्दुल करीम खान को सुन करके आए थे बम्बई से। तो उन्होंने जिक्र किया कि मैं बम्बई गया हुआ था तो मैंने एक गवैये को सुना है, वो गाते नहीं है रुलाते हैं। ऐसा वो गाते हैं कि जब उनका सुर लगता है तो लोग रो पड़ते हैं। वो अगर फकीर तबीयत के हैं, वो एक मिरज में रहते हैं और वो फकीर दुनिया है उनकी, बस वो ज्यादा कपड़े शपड़े ये वो नहीं पहनते, ज्यादा वो कुछ नहीं करते, बस वो गाते हैं और जब मैं गाते हैं तो लोग रोने लग जाते हैं। ऐसी तासीर है उनके गले में जी। जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा कि वाह, ऐसी हस्ती हो तो मैं महरूम रह जाऊंगी तो बड़ी गलत बात है। फिर मैंने अपनी वालिदा से कहा, मैंने कहा देखिए मुझे बड़ा शौक है, मैं चाहती हूँ कि मैं गाऊं तो ऐसी गाऊं के लोग समझे कि कुछ गाती हैं। बंबई पहुंचकर खान साहब से किसी की मार्फत शागिर्दी की बात चलाई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा कि मैं मुसलमान लड़कियों को शागिर्द नहीं बनाता, क्योंकि वो शादी के बाद गाना छोड़ बैठती हैं और उस्ताद की बरसों की मेहनत अकारत जाती है। उन्हीं दिनों रोशन आरा बेगम ने फिल्म वतन परस्त में एक दादरा गाया था, जिसके बोल थे, राजा जानी न मारो नैनवा के तीर। क्लासिकी मौसीकी के हलकों में इस दादरे का बहुत चर्चा था। किसी तरह खान साहब के छोटे भाई अब्दुल लतीफ खान की मार्फत खान साहब को यह दादरा सुनवाया गया। सुनकर इतने खुश हुए कि रोशन आरा को दूसरे ही दिन मुलाकात का वक्त दे दिया। रोशन आरा निहायत मुअद्दबाना उनकी खिदमत में हाजिर हुई तो खान साहब ने कहा, कोई अस्थाई याद हो तो सुनाओ। रोशन आरा ने एक अस्थाई शुरू कर दी। गा चुकी तो खान साहब ने पूछा, क्या गा रही थी? मुल्तानी, रोशन आरा ने अर्ज किया। कहने लगे, राग मुल्तानी तो नहीं, अलबत्ता मुल्तानी मट्टी जरूर थी। यहीं से तलमज का वो रिश्ता उस्तवार हुआ जो कई बरसों पर मुहीत रहा और जिसने रोशन आरा को वाकई रोशन आरा बना दिया। सबसे खूबी थी तो उनकी तान जो थी वो किसी की नहीं थी ऐसी।
तान की तैयारी और शफाफ तान फिरना और उसमें सुल कायम रहना, ये इनकी खास खसूसियत थी जिससे ये सबसे अलग नजर आई। और बेगम साहब की तो बस वो प्यारी बड़ी थी, बहुत प्यार गाती थी और बहुत उनकी तान ऐसी तेज, आधे सेकंड में वो तीसरी शख्स को दे के वापस और लय में एक माहौल कायम रखना, सुरों को कायम रखना, सुर को बड़ा सोच समझ के देखती थी। जब उन्होंने लाला मूसा को अपना मस्कन मुंतखब किया तो रोशनारा बेगम के मद्दाहों और फन्ने मौसीकी से प्यार करने वालों ने बड़ी हैरत का इजहार किया। तो वो कहने लगे, जी आपको क्या पता कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। मेरा बिल्कुल वो, मैं शुरू में जब आप आए तो फिर मैंने कहा कि अब तो कुछ शुरू करना चाहिए कुछ ना कुछ। तो वहाँ वो एक डर सा एक होता है, वो दूर सादा जगह है, वहाँ कुछ माहौल ऐसा नहीं है, कुछ कंजर्वेटिव लोग हैं। शुरू में मैंने लिहाज सारा ऊपर ले लेना और रियाज करना, फिर कभी कभी ये बड़ा सा मटका उसमें मुंह डाल के तो रियाज कर रही हूँ ताकि सुर से लगाओ जो है, सुर से बेगानगी न रहे। मगर ये लाला मूसा ही था जिसके ठहरे ठहरे सुकून बख्श माहौल ने रोशनारा बेगम के फन को कैसा कैसा सैकल किया। मौसीकी को जहाँ तक तकनीक कहा जाता है, उस पर तो उन्हें उस वक्त भी उबूर था जब वो पाकिस्तान आई थी। सुरों के दर्जे, उन्हें राग के मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल करने का सलीका, रागदारी, कैराना घराने की खास गायकी में एक एक सुर की खूबसूरत दर्जा बदर्जा बढ़त, मुख्तलिफ तालों पर उबूर, ये सब कुछ, और फिर उनकी खुदादाद आवाज, बेइंतहा लगन, बेहद रियाजत और उनकी सच्ची खरी तालीम ने उनके फन को मांझ कर तलवार की धार बना दिया था। दलमपर दुरत दोनों में यकसा महारत, तैयारी का ये आलम था कि हाथ से ताली देना मुश्किल हो जाता था। आकार और अलंकार दोनों निहायत पाकीज़ा और मंझे हुए। तान इतनी साफ कहती थी कि एक एक सुर वाज़े नजर आता था। चारों खोट इस कदर मुकम्मल फनकार थीं कि उनके फन के किसी पहलू पर तनकीद की गुंजाइश नहीं थी। उनकी एक तो तान का बड़ा खूबसूरत उनमें बात थी कि तेजी से बहुत घूमते थे वो, यानी लय ऊपर चली गई है, वहां पर जाकर के 3 मिनट रहना मुश्किल हो जाता है। तो मसलन ये मैंने कम औरतों में देखी बात कि ऐसे मतलब ज्यादा कोई सांस नहीं चढ़ता था उनको। उनकी गायकी का एक तो तसलसल सुरों का जो वो कायम रहता था, जैसे बांसुरी बज रही हो, वो कायम रहता था। और दूसरे अक्सर ये होता है कि जिस वक्त बिलमपत गाते हैं ना उस्ताद, तो बिलमपत में जो राग होता है वो तो राग की सही शक्ल होती है, लेकिन जब वो दुरत में आता है तो राग की शक्ल तब्दील हो जाती है। उनके यहाँ ये चीज़ नहीं थी। बिलमपत भी इतना ही खूबसूरत था, दुरत भी इतनी खूबसूरत थी, और राग अपनी सच्चाई पे सही राग रहता था आखिर तक, उसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं होती थी। क्योंकि क्लासिकल की पाबंदी ये बड़ी ज़बरदस्त है कि जो राग आप गाते हैं उस राग की आरोही, अमरोही, तीवर, कोमल सब सही होना चाहिए। लाला मूसा आबाद हो गई तो लाहौर रेडियो स्टेशन ने उन्हें अपने प्रोग्रामों में शिरकत के लिए मदऊ किया। रेडियो पाकिस्तान के तमाम स्टेशनों से हर हफ्ते कम से कम 30 मिनट उनके गाने नशर होना लाजिम था। रेडियो के आवाज के खजाने में उनके गाए हुए 102 ख्याल और तरानों की रिकॉर्डिंग महफूज है। गरज सब ने उन पर बेहद प्यार निछावर किया। थाउजेंड्स की ऑडियंस थी, नीचे ही लोग बैठे सर। तो वो गाने का ऐसा समा बना कि वो राग माल को उसने गाया, और राग की जो सिलसिला बात बढ़त और तानों का कमाल और तानों के एक के बाद दूसरे का तसलसल ऐसा उन्होंने बांधा ऐसा, और राग का जो बुनियादी तासुर था वो बाद में यानी लोग ख़त्म हुआ तो सबसे के आलम बाज हो गया। तो कहने लगे ऐसे लग रहा था कि राग की जो शक्ल होती है वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म से वो कंक्रीट फॉर्म में सामने मौजूद आ गई।
सुर, ताल, बोल, बंदिश, आवाज, तालीम, हत्ता कि मेहनत और रियाजत भी महज एक हद तक राग की तश्कील और तामीर में मदद देते हैं। लेकिन राग के असल खदोखाल उस वक्त उजागर होते हैं जब राग के सब अज्जा फनकार के जहन की भट्टी में तपकर तख्लीक का दर्जा हासिल कर लेते हैं। अब आजकल के जो मौसीकी है उससे और इस गाने में बड़ा तो ऐसी बात भी नहीं, लोग हैं शौकीन है, मगर वो इतना सीखेंगे नहीं, इतना रियाज नहीं करेंगे। ये गाना तो बड़ा मुश्किल है, आपको पता है। बॉम्बे से कलकत्ते से हाँ। और यहाँ आके सब कोई ऐसा नहीं मिला फनकार जो कि सीखना चाहता हो। नहीं, कोई भी नहीं मिला, क्योंकि अगर जो एक बच्चे आए भी तो उन्होंने कहा जी वो आप हमको कितने दिन में सिखा देंगे गाना। यानी मैं ये मालकोस कब गाऊंगा, उसके बाद फिर मैं वो दरबारी कब गाऊंगा। अब बताएं कि हम अगर बैठे हैं गाने के लिए अपनी जिंदगी में, जब मैंने शुरू किया है तो एक राग को 4-4 महीने तक रट रहे हैं और उस्ताद कह नहीं सकते कि मुझे इसे खत्म कीजिए, आ भी गया या नहीं। उन्होंने कहा नहीं भाई, वो पहले तो गले में गायकी की बंदिश पैदा करनी पड़ती है कि उनके गले की बंदिश कैसे बनाई जाए, क्या करें। मगर अब यहाँ तो ये है कि वो क्या चाहते हैं कि हमें महीने के अंदर 4 राग हम गाने लग जाए, तो ये तो नामुमकिन सी बात है। खासकर ये क्लासिकल जो मौसीकी है, ये फन जो है तो बड़ा मुश्किल फन है। ये सही है कि रोशन आरा बेगम ने सुर के शऊर और रागदारी के हुसूल के लिए बेइंतहा लगन और मिसाली मेहनत के साथ अपनी तालीम मुकम्मल की, लेकिन गाते गाते वो राग को उस नुक्ता उरूज पर ले जाती थीं कि उनकी पेशकश टेक्निक के दरोबस्त को कहीं पीछे छोड़कर कुल कायनाती हुस्न का जुज़ बन जाती थी। उस आलमगीर हुस्न ने जो जमाल बनकर सारी कायनात के रगो रेशे में रचा है और जिंदगी की हर तलखी का तरियाक है। वो जिन्होंने रोशन आरा को सिर्फ देखा है और वो जिन्होंने महज उन्हें गाते सुना है, उनकी शख्सियत के बारे में शायद कभी मुत्तफिक न हो सकें। वो सादा और दरवेश, नीची नजरें किए रहने वाली खामोश सी खातून, आलाप के हर सुर के साथ उनकी शख्सियत हसीन से हसीन तर होती जाती थी। जश्न बहार रेडियो पे बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हुआ करता था, इसमें बेगम साहब तशरीफ लाई और हस्ब मामूल, चूंकि माशाल्लाह ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी फनकार है, इनकी सबसे बारी आखिर में आती थी। और वो जमाना ये था कि रेडियो पे अगर 1 मिनट ज्यादा प्रोग्राम नशर हो जाए तो आपका एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाता था। ये कोई नहीं सुनता था कि आपने क्या किया, अच्छा किया या बुरा किया। तो बड़ी मुश्किल से हमें रेडियो लाहौर को ये इजाजत मिली कि बजाय 10 बजे रेडियो बंद करने के आप 12 बजे तक रेडियो बंद करें। तो बेगम साहब का प्रोग्राम था, तो ये शंकरा इन्होंने शुरू किया और उसके बाद इन्होंने ठुमरी झंझोटी कहानी थी, पिया बिन्ना ही आवत चैन। ये मेरा ख्याल ये है कि या तो रतन संगीत इनके उस्ताद जो थे अब्दुल करीम खान ने गाई और या फिर बेगम साहब ने गाई। तो इन्होंने ठुमरी झंझोटी शुरू कर दी, तो पता ये चला कि 1 बज चुका है और रेडियो अभी तक चल रहा है। ये पेशावर में मैं प्रोग्राम था मेरा, तो बहुत सख्त गर्मी थी। आप पूछ सकते हैं जो लोग वहां पर थे, तो सब इस कदर गर्मी थी कि लोग घबराए हुए थे। तो कहने लगे बेगम साहब आप क्या गा रही हैं? मैंने कहा मैं कुछ गा लूंगी जो मेरे दिल में आएगा। कहते नहीं, आप मियां वाला लगाइए, शायद आपके गाने से कुछ बारिश हो जाए। मैंने कहा बारिश तो खुदावंद करीम बताता है, मेरे गाने में इतनी ताकत नहीं। तो फिर कहने लगे नहीं आप यही गाइए। और वो मैं शुरू हुई ना, वो बोलते करीम नाम तेरो, और बस कुछ लौ लगी हुई थी अल्लाह की तरफ कि या अल्लाह तो इज्जत रख ले, बरसा दे। तो इसको आप इत्तेफाक कहें, कोइंसिडेंस कहें,
بادل تھے پہلے، لیکن جب انہوں نے اپنا آلاپ ختم کر کے بلمپت شروع کی تو دوسرے چوتھے بول میں وہ ہلکی ہلکی بوندیں گرنے لگی. تو لوگوں نے کہا کہ واقعی وہ تو ہمارے پشاور کے لوگ بڑے اس چیز کے جذباتی ہو گئے. میں کہ واقعی مر گئے، موسیقی نے ملہار گئے. تو دوسرے دن بھی پھر لوگوں نے کہا جی ان کی ملہار کی وجہ سے بارش ہوئی. ان کے سروں کا نور ان کے گلے سے پھوٹ کر ان کی ذات ان کے سر و پا میں سما جاتا تھا، اور راگ کے ختم ہوتے ہوتے ساری محفل بقعۂ نور بن جاتی تھی. راگ کے خرام میں آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ آگے بڑھتی ہوئی جب وہ سب تک پوری کر کے ٹیپ کے سر پر قیام کرتی تھیں تو سننے والوں کو ایک لڑی میں پرو کر کائنات کی کھلی فضاؤں کا حصہ بنا دیتی تھی. میں نے ان سے شدھ کلیان جب گوایا تو میں نے ان سے کہا دیکھیے آپ نے پہلے جو شدھ کلیان گایا تھا وہ 5 سروں سے گایا تھا، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر 100 سال سے میں بھی سنتا آیا ہوں ایک ایسا شدھ کلیان بھی ہے جس میں صرف اروئی میں یہ شدھ نہیں لگاتے، ابروئی میں لگا جاتے ہیں. استاد میر خان نے بھی ایسے گایا ہے. تو فوراً مان گئی کہیں ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے بالکل ویسے ہی گایا جیسے میں نے ان سے کہا تھا، ویسے ہی سر لگا کے، اور بہت خوش ہوئی. ٹیپ کے سروں کے اس موجزانہ استعمال کی وجہ سے تار سپتک کے راگ مثلاً مدھومت سارنگ، بسنت، اڈانا وغیرہ ان کی آواز میں بہت کھلتے تھے. درت لے میں آتی تھیں تو سروں کی پھوہاریں پھلجھڑیاں بن جاتی تھیں. کہیں صاف شفاف تانوں کے کوندے لپک رہے ہیں، کہیں گمک بادلوں کی گھن گرج کا سما پیش کر رہی ہے. مرکیوں بہلاؤں زمزموں پر لوٹتی تو جھرنے سے گنگنانے لگتے. راگ کی آخری منزل پر پہنچ کر جب گانا ختم کرتی تھیں تو ان کے سروں کا ارتعاش فضا میں اس طرح جامد محسوس ہوتا کہ دیر تک کوئی بات نہیں کرتا تھا کہ راگ کا آفاق گیر سراپا جو انہوں نے اپنی آواز سے تراش کر سامنے لا کھڑا کیا ہے کہیں بکھر نہ جائے. روشن آرا بیگم نے کلاسیکی موسیقی کو اپنے فن سے جس طرح سجایا اس پر دفتر کے دفتر لکھے جا سکتے ہیں، لیکن چند خصوصیات ان میں ایسی تھیں جو کسی میں بھی نہیں تھیں. وہ پہلی گائکا تھیں جنہوں نے اپنی گائکی میں گمک کا استعمال کیا. گمک اب بھی صرف مرد گویوں کے ساتھ مخصوص ہے. پھر انہوں نے ایک اور صفت بھی تھی کہ عورت مرد کا ہمیشہ گانا الگ ہوتا ہے. ان میں کچھ مردوں والی صفت بھی تھی، گمک ہے، اکار ہے، موٹا گانا کرنا، بریک کر لینا، یہ بھی ان کے گانے میں ایک صفت تھی. روشن آرا بیگم نے اپنے ذہن میں لے کو اس قدر سمو رکھا تھا کہ جس ماترے سے چاہتی بول بنا کر سم پر آ جاتی تھی. پہلے سے کوئی ماترا خود نہیں کرتی تھی کہ یہاں سے بول اٹھا کر سم پر آنا ہے. آرٹسٹ کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں نا، ہر آرٹسٹ کے ساتھ ہم محتاط کہ چاہے اچھا ہو چاہے کیسا بھی ہو، تو اچھے فنکار جو ہیں ان کے ساتھ تو بیٹھنا ویسے ہی آدمی کے دل میں وہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے بلبلا سا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ باعزت ہم ان کے ساتھ کام کر سکیں ان کی مرضی کے ان کے منشا کے مطابق، تاکہ پبلک کو بھی اچھا لگے اور یہ بھی لوگ جن کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں یہ بھی خوش ہو جائیں. سنگت دراصل سولو سے زیادہ مشکل ہے. سولو اپنا کام کرنا ہے،
जितनी रियाजत की या जो कुछ याद है वो करना है। संगत गवैये का मिजाज है, हर गवैये के साथ अलग अलग मिजाज है, उनके मिजाज को देखना, तो इसलिए ज्यादा संगत, सोलो से ज्यादा संगत मुश्किल होती है, और जितना बड़ा गवैया हो उसके साथ उतना ही मुश्किल होता है। रोशन आरा बेगम अपने इल्म, अपने फन और अपनी रियाजत को सिर्फ राग के खदोखाल उजागर करने में सर्फ करती थी, उन्हीं को मुकद्दम मानती थी, और राग की जुजियात यानी ताल, बोल, लयकारी को कभी इतनी अहमियत नहीं देती थी कि राग कहीं पीछे रह जाए और फरोआत सामने आ जाएं। वो मौसीकी में किसी शोबदेबाजी की कायल नहीं थी, इसी वजह से वो सरगम का भी सहारा नहीं लेती थी। बोल, बंदिश और ताल का जो दायरा कायम कर लिया, उसी में रहकर सुरों के दीप जलाती जाती थी, जिससे राग की राहें रोशन होती जाती थीं, यहां तक कि राग गोया मुजस्सिम उनके सामने आकर खड़ा होता था। ज्यादा बंदिशें उन्होंने आम फहम तालों में ही गाई हैं। बिलम्पत में 1 ताला और दुरत में 3 ताल में। गाते गाते कभी किसी दाद देने वाले से आंखें चार हो जाती तो एक लम्हे के लिए हल्का सा तबस्सुम उनके चेहरे पर खेल जाता, लेकिन इस लताफत से कि सुरों की नाजुक शीशागरी का तसलसल मुसलसल कायम रहता। गाने में सारंगी या तबले के सुर में हवा भर भी फर्क आ जाता तो साजकार की तवज्जो उधर मबजूल कराती। पुरानी इमारत थी आर्ट्स काउंसिल की, वहां पे उनका कॉन्सर्ट हो रहा था, तो मैं साथ बैठी थी तानपुरे पे, तो उन्होंने ठुमरी झंझोटी शुरू की, पिया दिन नहीं आवत चैन। तो पता नहीं मुझ पे उस वक्त वो सुनने के बाद क्या मुझ तारी हुआ कि वो गा रही थी और मेरे आंसू बहने शुरू हो गए। अब हॉल सारा सामने भरा हुआ, मैं तमाम लोगों के सामने बैठी, कभी कभी मुझे ख्याल भी आए कि ये तमाम लोग देख रहे हैं और मेरे आंसू बह रहे हैं, ना मैं आंसू पहुंच सकूं क्योंकि मेरे हाथ जो है वो तानपुरे के साथ उलझे हुए थे। तो वो तानपुरे पे मेरा ख्याल हाथ मेरा जरा हल्का हुआ होगा और उन्होंने फौरन मेरी तरफ यूं देखा उस आवाज से। तो देखने के बाद एकदम अपना चेहरा दोबारा पलट लिया। बाद में मुझे कहने लगी कि हमें तानपुरे की आवाज जरा आहिस्ता हुई थी तो हमने तुम्हारी तरफ देखा तो तुम्हारे तो आंसू बह रहे थे, तो हमने कहा भाई ये तो हमारा भी मूड खराब करेंगे, तो हमने इसलिए मुंह मोड़ लिया। तानपुरा मिलाती भी खुद ही थीं और इस एहतमाम से कि मिलाने में 30-30 मिनट लग जाते और जब तक पूरी तरह मुतमईन न हो जाएं, उसके तारों से उलझी रहती। स्टेज पर आने के बाद भी 2 तानपुरों को छिड़वाकर सुर का रचाव जहन में मुंतकिल करती थी। नशिस्त का वही क्लासिकी अंदाज और रख रखाव जो इस कदीम फन की तहजीब है। राग में न्यास
गिरा वादी संवादी का पूरा ख्याल रखती थी। ठुमरी दादरे में आवाज को ढालती तो इस कदर नरमी से बहलावे कहती कि लहजे में ख्याल की गायकी का शायबा भी न होता। रोशनदारा बेगम पैदा हुई तो बकौल उनकी इब्तदाई जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार जानवरों से था। पालतू जानवर तो बहुत है ना मेरे पास। अच्छा, मसलन कुत्ते, बिल्लियाँ, तोते, चिड़ियाँ। बिल्लियाँ तो होंगी जरूर, कुत्ते भी हैं, कुत्ते बड़ा प्यार करते और बहुत सी चीजें हैं घर। वो जानवरों के लिए तो ये है ना कि वो खुद अपने खाने से पहले जाती थी उनको खाना देने के लिए, और बर्तन अपने सामने साफ करवाने उनके, और उसमें डलवाना, छान के डलवाना कि वो कहीं तीला चुभ ना जाए। तो हम लोग ये बाहर वाले जानवर हैं उनको तो कुछ नहीं होता। तो ये ऑस्ट्रेलियन तोते वगैरह है ना, उनको भी कोई जो भी दाने वगैरह डालती थी ना, देखती थी कुछ तीले शीले ना बीच में चले जाए। वो इतनी एहतियात तो उनके लिए किया करती थी जैसे उन्होंने गाना हो। वो हंस के बड़े बड़े उनको खुद वो कहती थी कि मेरे पास आए और मैं उनको प्यार करूं, उनको खुद वो फीड करवाती थी। बिल्ली जब वो बाहर निकलती थी सारी बिल्ली उनके पास आ जाती थी, उनको दूध देती। कुत्ते भी भौंकने शुरू हो जाते थे। कभी वो जोड़ा तोतों का वो अंडे दे दिया करता था, तो वो दिन में मैं हाल 50 दफा जाती थी देखने के लिए कि चोंच तो नहीं मार दी तोते ने अंडे में, वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। फिर उसको रूई में उठा के रखना। मैंने कहा वो आप समझेगा नहीं जो उसका अपना अंडा है। आप तो इतनी एहतियात कर रहे हो उसके लिए। अल्लाह ताला ने उन्हें सुर भी अदा किया और सच्चे सुर की लगन भी, मेहनत और रियाजत का हौसला दिया और मौसीकी की तालीम के लिए साजगार माहौल और मुमकिन हद तक बेहतरीन तालीम की तौफीक भी बख्शी। उन्हें फनकार बनाया तो इंसानियत की पाकीज़ा कदरों यानी नेकी, सादगी, मिलनसारी, सच्चाई, हमदर्दी, खुलूस और इंकिसार से भी नवाजा। हमेशा नसीहत ये किया करती थी कि बेटा देखो, तकब्बर और गुरूर जिंदगी में किसी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। ये अल्लाह ताला का फरमान है, तो कहते कि तकब्बर कभी नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो अपनी जिंदगी में जब अल्लाह ताला ने उनको इतना मुकाम दिया था, इतनी बड़ी शख्सियत कि दुनिया उनको मानती थी, लेकिन वो समझी पता नहीं मुझे क्यों इतना मानते हैं कि मैं तो ऐसे, मुझे तो नहीं महसूस होता है। अपनी जिंदगी में उन्होंने अपने आप को तब्दील नहीं किया। वो अपनी अगर वो जो अपनी जिंदगी का रहन सहन करती तो वो उन्होंने वही अपनाए रखा। कभी वो गुस्से में अव्वल तो आती नहीं थी, और अगर गुस्से में आ भी जाती थी तो अगर अगला गलती का तराफ फौरन कर ले तो एकदम गुस्सा ठंडा हो जाता था। और अगर वो किसी दूसरे कमरे में दूर है तो किसी बंदे को आवाज़ देनी है ऊंची आवाज़ में, तो ऊंची आवाज़ में मिलकर गले सूर ही निकलते थे, कभी बेढंगी आवाज़ नहीं निकली थी गले में से। हमने तो हमेशा प्यार के ताने ली, गुस्से की ताने कभी नहीं ली। जहाँ तक उनकी इंसानियत का ताल्लुक है, वो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल एक 5 साल के मासूम फरिश्ते की तरह थी, और बड़ी भोली भाली, सीधी सादी
اور اتنا ان کو گانے سے لگاؤ تھا، میرا خیال ہے کہ ان کو اور کسی چیز کی کوئی نہ علم تھا، نہ وہ اس میں کوئی ذاتی طور پر حصہ لیتی تھی سوائے موسیقی کے۔ استادوں کی عزت و احترام کا وہ جذبہ عطا کیا کہ آخری وقت تک اپنے اساتذہ کا نام سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے تھے۔ اسی اسلام میں ہمارے ساؤنڈ ریکارڈرس نے بیت علی خان صاحب کا ریکارڈ لگا دی، وہ ریکارڈ جب لگ گیا تو کھڑی ہو گئی اور سننے لگی، سنتے سنتے میں دیکھا کہ ان کی آنکھیں بھر آئیں، تو کہنے لگی شیخ صاحب یہ ہمارے ہیرے تھے، اب ایسے لوگ کہاں۔ نہ کسی سے بیر، نہ کسی کی غیبت، نہ کسی سے حسد، نہ کسی کی دل آزاری کا تصور۔ گانے میں جتنی تیزی تراری، طبیعت میں اتنی ہی انکساری۔ وہ اکثر وہ جو نوکرانی تھی نا ہماری، وہ ڈال دیا کرتے تھے بیڈ کور تھوڑا سا ٹیڑھا، تو جیسے ہی انہوں نے کمرے میں جانا سب سے پہلا کام ان کا ہوتا تھا اس چارپائی کے اس طرف جا رہی ہیں بیڈ کے، پھر اس طرف آ رہی ہیں، میں کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے یہ جواب دینا، اب نظر نہیں آتا کہ جیسے یہاں سے ٹیڑھا ہے، یہاں سے اونچا ہے، پہلے اس کو ٹھیک کر لوں پھر دوسری بات کریں۔ شی واز لائک دیٹ، وہ کوئی بھی صوفہ ٹیڑھا ہے، کرسی ٹیڑھی ہے، تو جاتے جاتے ہر چیز صحیح کرتی ہوئے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ ان کی پسند تھی، وہ سبز رنگ بہت پسند کرتی تھی، وہ ڈارک رنگ کے کپڑے پہنتی تھی اکثر وہ، اور اپنے کمرے کی چیزیں بھی اکثر بیڈ روم کا اپنا وہ جو ان کا کلر تھا سارا انہوں نے گرین کرایا ہوا تھا، کافی چیزیں گرین پسند کرتی تھی۔ یہاں کی گرین کوئی چیز دیکھ لی تو وہیں کھڑے ہو جاتے تھے، میں تجھے لے کے ہی چھوڑوں گی، بس پسند ہے مجھے۔ فن کی ترویج پذیرائی ہر فنکار کی دلی آرزو ہوتی ہے، لیکن اکثر فنکار اس خواہش کو صرف اپنے ذاتی فن تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ روشن آرا بیگم نے اپنے فن کی حدود سے آگے جا کر فن موسیقی کے پرچار کے لیے عملی اقدام بھی کیے۔ انہوں نے کل پاکستان میوزک کانفرنس کی داغ بیل ڈالی اور ہر ممکن پلیٹ فارم سے کلاسیکی موسیقی کے پرچار کے لیے تقریریں کی اور ہر سطح پر اس کے فروغ کے لیے کوشاں رہیں۔ اوپن ایئر تھیٹر، روشن آرا بیگم اور کل پاکستان موسیقی کانفرنس، ایک ہی یاد ایک ہی مقام۔ 22 اور 23 فروری 1960 کی بات ہے کہ پہلی میوزک کانفرنس کا پہلا روز تھا۔ ریڈیو پاکستان سے بہت سے سازکاروں کی امید تھی اور ان سے بات ہو چکی تھی، لیکن عجیب بات ہوئی کہ نہ تو وہ سازکار آئے اور بہت سے گانے والے بھی نہ آئے، تو چونکہ فنکار تھوڑے، سازکار بہت تھوڑے، تو یوں محسوس ہوا کہ کام خراب ہو گیا پہلے۔ اب یہ ایک شاخسانہ تھا جو کہ راستہ ایک برداشت نہ کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم گائیں گے، اب کانپورے کے تار ٹھیک نہیں ہے، اور روشن آرا بیگم جب اسٹیج پہ آ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ تارے نے، وہ سرنگی والا تھا، اس نے کہا جی میں نے جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں وہ میں نے تو اس کا ساتھ نہیں باندھا، ان کا پرواہ نہ کرو، آپ کا جو بھی ساتھ ہوگا میں اس کے مطابق گاؤں گی، اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں کہ ساز کسی اور ٹھاٹ پہ ہو، گانا آپ کسی اور پہ چاہیں اور آپ اس کے ساتھ گائیں، اور تاریں بھی کانپورے کی دو کام ہیں۔ اب وہ 1.5 گھنٹہ گاتی رہی اور وہ سناٹا اور ان کی آواز کا جادو وہ اثر کر گیا اور موسیقی کانفرنس سنبھل گیا۔ چودھری احمد خان کے انتقال کے بعد روشن آرا بیگم کے شب و روز بدل گئے، وہ اداس رہنے لگیں، تقریباً 1.5 سال تک گانا نہیں گایا، پھر مداحوں کے کہنے سننے پر شروع کیا اور بہت بہت گائیں، مگر باقی زندگی دل میں ایک بوجھ لیے رہیں۔
अदा तो मैंने चौधरी साहब की एक मोहब्बत की देखी थी। बाजी की आदत थी अक्सर वो सर्दी में कि मफलर अपने सर पे डाल लेती थी, सीधी सादी औरत थी, मफलर डाल के वो गाना शुरू कर देती थी, चाहे रेडियो या वैसे हमारे यहाँ गा रही थी। हमने कहा बाजी गाइए, तो वो गा रही थी अनसुध धुनी, जिसका रिखब और रिखब वादी सुर हैं, तो सुना रही थी हमारी तुम्हारी शरण आन पड़ी रखियो मोरी लाज, बहुत प्यारा। तो उसके बाद वो गाते गाते उनका जो मफलर था वो उन्होंने यूं रख लिया अपने सर पे, और इधर चौधरी साहब बैठे थे, हम भी सामने बैठे, तो वो मफलर यूं आ गया गाते गाते, तो चौधरी साहब आए, उन्होंने आराम से यूं हटा दिया। हम समझने लगे, कहते थे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते रोशन गाए और हम मुंह न देखे। इतने मैं कहती हूँ वो गाते भी इस कदर खूबसूरत लगती थी, इतनी अच्छी लगती थी कि मैं तो समझती हूँ मुझे लगता था कोई आसमान से परी उतर आई। 5 दिसंबर 1982 को मौसीकी का ये महताब हमेशा के लिए गुरूब हो गया और उनके साथ ही क्लासिकी मौसीकी का एक इंतहाई रोशन बाब खत्म हो गया। अब अहले नजर पर है कि वो ताजा बस्तियां आबाद करें और इस फन को, जिसे मुसलमानों ने सदियों की मेहनत से परवान चढ़ाया है, जिंदा रखें। महज इसलिए नहीं कि ये हमारी तारीख है, हमारी रवायत है, बल्कि इसलिए भी कि क्लासिकी मौसीकी हमारी मौसीकी की तमाम असनाफ की बुनियाद और सरचश्मा है। ये असास कायम रहेगी तो हमारा अपनी रवायत और अपनी तहजीब से रिश्ता जुड़ा रहेगा। ये कड़ी टूट गई तो फिर भांत भांत की बोलियां, आरजी खुशबख्तियां और गैर तहजीबों की खोशाचीनियां बाकी रह जाएंगी, जो बगैर किसी मंजिल के हवाओं के बदलते हुए रुखों के साथ हमें कभी इधर कभी उधर उड़ाए फिरेंगी। मौसीकी अपने रूहानी अंसर से आरी हो जाएगी और महज एक बेबुनियाद, बेमकसद जुज वक्ती तफरीह बनकर रह जाएगी। मगर शायद ऐसा ना हो। जब तक रोशन आरा बेगम जैसे फनकारों का नाम जिंदा है, ये फन अहले ज़ौक़ को हमेशा अपनी तरफ आने की दावत देता रहेगा। नहीं, मुझे मेरा साथी और जो दोस्त, मैं जिसको समझती थी, मैं अपने गाने को समझा मैंने बचपने से, कोई ऐसी चीज उसी से दिल बनाया मैंने, किसी तरफ मेरा ख्याल गई। बस एक अगर किसी से बेनता हूं, एक लगन थी तो बस मुझे अपने गाने से, मौसीकी से शुरू से, बस वही मोहब्बत, सब कुछ वही है।